আমার সাথে কাজ করা দীর্ঘদিন ধরে কিছু লোককে আমাদের বাদ দিতে হয়েছে, কিন্তু আমরা ঠিক করেছি এবার আমরা বিধান পরিষদ তৈরি করব এবং বিধান পরিষদে আমরা যাদের বাদ পড়বে তাদের আমরা নিয়ে আসবো। যেমন আমার সহকর্মী পূর্ণেন্দু বোস আমার নন্দীগ্রাম ইলেকশনের দায়িত্ব নিয়ে গেছে, ওনাকে আমরা বিধান পরিষদের সুযোগ পেলেই নিয়ে আসবো। যেমন অমিত মিত্র অসুস্থ স্বাস্থ্যের কারণে তিনি এই মুহূর্তে কন্টেস্ট করতে পারছেন না, বা পরে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো তিনি আমাদের সাথে আসবেন। মনীশ গুপ্ত, এই ধরনের ধরুন অনেক নাম আছে। যেমন মাস্টারমশাই সিঙ্গুরের, ওনারও প্রায় 89 ইয়ার্স হয়ে গেছে। যাই হোক, এরকম টাইপের অনেকে আছে, যেমন ব্রজ মজুমদার খুবই ভালো, আমাদের সবসময় সহযোগিতা করেছেন। এরকম জটুদা থেকে শুরু করে অনেক নাম আছে। যেমন আমাদের সোনালী আছে, সোনালীর শরীরটা একটু খারাপ, সুগারটা একটু হাই হয়েছে। এইরকম কিছু আছে অনেকেই যাদের আমি অত দিতে পারিনি। বুয়া আছে, এরকম অসীম মাঝি আছে, অমল আচার্য আছে, এরকম কয়েকজন আছে অনেকেই, তো তাদের আমি দিতে পারিনি। বাট আমরা বিধান পরিষদে চেষ্টা করবো তাদের নীতিগতভাবে নিয়ে আসতে এবং জলজ্যোতি তলা থেকে দলের কাজ করে ভালো করে করেছেন এতদিন, তাদের আমরা আমাদের নানা রকম কাজে লাগাবো। তিন হচ্ছে আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম, যাদবপুরেও আমি দাঁড়িয়েছিলাম এবং যখন কেউ সেখান থেকে দাঁড়াতে চাইনি, তারপরে আমি হাজরায় আমায় মারা হয়, আমি সারা শরীরে চোখ নিয়ে কন্টেস্ট করি। তখন কন্টেস্ট করার মতো পরিস্থিতি ছিল না, তা সত্ত্বেও আমি দক্ষিণ কলকাতায় কন্টেস্ট করেছিলাম। তারপরে আমি ভবানীপুরে আমি 7 বার কন্টেস্ট করেছি, 8 বার ইলেকশনে, 7 বার জিতেছি, যেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট ইলেকশনে, আর 2 বার আমি এমএলএ ইলেকশনে কন্টেস্ট করেছি এবং জিতেছি। ভবানীপুরে আমি 2 বার জিতেছি, আবার প্রয়োজন হলে আবার দাঁড়াবো পরে। কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আর ভবানীপুরটা পুরো নিজে আমি রোজ করি। আমি এখানে এমএলএ ইলেকশনে দাঁড়ালাম কি না দাঁড়ালাম বড় কথা নয়, ভবানীপুরটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো এবং রাসবিহারী আমরা সেক্ষেত্রে দেবাশিস কুমারকে একজন নতুনকে নিয়ে আসছি। যেমন আমি আপনাদের বলি, 2-1টা অতীন ঘোষ দাঁড়াচ্ছে। মালা শাহ শরীরটা একটু ভালো নয়, তাই মালা শাহ ওখানে অতীন ঘোষ বেলগাছিয়া ওখানে দাঁড়াচ্ছে। যেমন স্মিতা বক্সি সিটটা, স্মিতা আমার খুবই ফেভারিট মেয়ে, ভালো মেয়ে, কিন্তু একটু রাজনৈতিক কারণে ওই সিটটা আমরা বিবেক গুপ্তা, সাতমার কাগজের এডিটার, ওকে আমরা দিচ্ছি। এইরকম ধরুন আমাদের এরকম অনেক সিট আমরা যেমন সায়ন্তিকাকে দাঁড়া করাচ্ছি, আমরা লাভলিকে দাঁড় করাচ্ছি। লাভলি সম্ভবত সোনারপুর দক্ষিণ, জীবন মুখার্জি দাঁড়াচ্ছেন না। আমরা নির্মল মন্ডলকেও টিকিট দিতে পারিনি, অন্যান্য নিয়ে এসছি। আমরা কাঞ্চন মল্লিক দাঁড়াবে উত্তরপাড়া সিটে, সায়ন্তিকা দাঁড়াবে বাঁকুড়া সিটে, জুন মালিয়া দাঁড়াবে মিদনাপুর সিটে, বিদেশ বোস দাঁড়াবে উলুবেড়িয়ার, ওটা উলুবেড়িয়া কোন সিট, 1 সেকেন্ড, বিদেশ বোস পুষ্পতন দাঁড়াচ্ছে আর কি এসব। আচ্ছা, মনোজ তিওয়ারি, ওকে আমরা দাঁড় করাচ্ছি শিবপুরে, আর রাজ চক্রবর্তী দাঁড়াচ্ছে ব্যারাকপুরে। সুতরাং এ ধরনের কিছু সিট তো আপনাদের আমি বলেই দিলাম। ডক্টর করিম দাঁড়াচ্ছে ভাঙড়ে, সিদ্দিকুল্লাহ দাঁড়াচ্ছে মন্তেশ্বরে, ইদ্রিস আলীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মুর্শিদাবাদের দিকে, আর ঝাড়গ্রাম সিটটায় দাঁড়াচ্ছে চুনি হাসদার মেয়ে বা বীরবাহা হাসদা। ও আপনারা জানেন ও আদিবাসী মেয়ে, বা জেনারেল সিটে ওকে দেওয়া হচ্ছে। ও একজন ফিল্ম স্টারও এবং আদিবাসী খুব পপুলার মেয়ে। আর বাদ বাকি আমরা মিলিয়ে মিশিয়ে যতটা পেরেছি, ইয়াংদেরও কিন্তু আমরা অনেক দিয়েছি, মানে বিশেষ করে নিউ জেনারেশন। আমার তো মনে হয় আমি 27-28টা সিটের বেশি বুথ পেয়েছি। এমএলএ সিট পাইনি 27-28টা এমএলএ, তাদের বদলে নতুনরা এসছেন, এরকমও অনেক আছে। সেটা আপনারা দেখে নিয়ে টোটালটা
সেটা ভালো লাগবে না। আমি তো বললাম কারো শারীরিক কারণে হয়তো আমি দিতে পারছি না, 80 বছর বয়স হয়ে গেছে, এইসব কারণে নানা রকম হতেই পারে। মিনিস্টারকেও আমরা টিকিট দিতে পারছি না। এরকম আছে আরো, ওখানে ওরই একজন রিলেটিভ পাচ্ছে মহিলা। আর যে কবি এখানে ছিলেন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান, যিনি হাইকোর্টের জাস্টিস ছিলেন, তিনি মালদায় যাচ্ছেন নিজের কনস্টিটিউয়েন্সিতে, নিজের বাড়ির ওখানে। চন্দ্রিমা দাঁড়াচ্ছে দমদম উত্তরে, অদিতি মুন্সি দাঁড়াচ্ছে রাজারহাট পূর্ণমিদা সিটটায়। সব আমার ভালো ভালো ক্যান্ডিডেট বলো। এইরকম যেমন অনেক ডাক্তার আছে, বালিতে আমার ডাক্তার রানা বাবু দাঁড়াচ্ছেন, যেমন আমার প্রচুর ডাক্তার ক্যান্ডিডেট আছে। আপনার প্রফেসর থেকে শুরু করে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে তারা সকলেই আমাদের সমর্থনও করছে, এবং আমি খুব গ্রেটফুল। নো ভোট টু বিজেপি যারা করছেন তাদেরও আমি আমার অনেক থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। এবং মতুয়া ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে, রাজবংশী থেকে শুরু করে, বুদ্ধিস্ট থেকে শুরু করে, তামাং থেকে শুরু করে, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং পাহাড় থেকে শুরু করে, আমার একেবারে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, বাউরি, বাগদি, দাস, কুম্ভকার, মাহাতো থেকে শুরু করে, জেনারেল কাস্ট থেকে শুরু করে সবাই মোট কথা, প্রত্যেকে সাঁওতাল, প্রত্যেকে মানে সমস্ত। মনোজ তিওয়ারি আছে প্লেয়ার, বেঙ্গল ক্যাডারের, আমাদের বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট বিবেক গুপ্ত আছে, মনোজ তিওয়ারিও আছে, বিদেশ বোস আছে উলবেড়িয়া পূর্ব। সাংবাদিক আছে ওই যে বিবেক গুপ্ত, সাংবাদিক শুধু না, সংবাদপত্রের মালিক, আবার লেখেও, আবার কেউ বেশি কড়া লিখলে সেটাকে কেটেও দেয়। প্রচুর। সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, রাজ চক্রবর্তী ইয়াং ফেস নয়, দেবরাজ অদিতি মুন্সি ইয়াং ফেস নয়, লাভলি ইয়াং ফেস নয়, সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয়, অল আর ইয়াং ফেস। হ্যাঁ, শাওনি পাচ্ছে তো, শাওনি সোহম, শাওনি মনে হয়, দেখুন তো বিষ্ণুপুর বেহালা পূর্বে ফেমাস ক্যান্ডিডেট রত্না চ্যাটার্জি, মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং মহিলাদের হয়ে লড়াই করবার জন্য। तो फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं ममता बनर्जी, जिन्होंने लिस्ट जारी कर दी है 291 सीटों के लिए, और एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। यानी वो कयास जो लगाए जा रहे थे कि क्या नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं, जिसका वो संकेत अपनी रैलियों में दे रही थी, फिलहाल बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि नंदीग्राम से ही चुनावी मैदान में उतरेंगी ममता बनर्जी। जी हाँ, तो 294 सीटों के लिए ऐलान किया है। 291 सीटों से टीएमसी चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटें सहयोगी दलों के खाते में दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। सबसे बड़ी बात, 50 महिलाओं को टिकट दिया गया और 27 मौजूदा जो विधायक हैं उनके टिकट काट दिए हैं ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी भवानीपुर की जगह नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं कि वो भी नंदीग्राम से लड़ेंगे। मुकाबला जो भी हो बहुत दिलचस्प होगा, रोचक होगा। तो 27 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं ममता बनर्जी ने। मुस्लिम को 42 मुसलमान जो उनके कैंडिडेट हैं उनको टिकट दिया गया ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से। तो भवानीपुर की जगह नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी।
294 सीटों का प्रत्याशियों का ऐलान किया। 291 पर इनकी पार्टी लड़ेगी, जबकि 3 सीट अपने सहयोगियों के खाते में इन्होंने दिए। রাজীব সিনহা বালুরঘাটে একজন ডাক্তার, বালুরঘাটে একজন লয়ার শেখর বাবু বলে থাকে। জয়পুরে একটা নারুগোপাল আছে, বিধাননগর শরীফ, সব ভালো ভালো দাঁড়িয়েছে। দিদি রিটায়ার্ড ব্যুরোক্র্যাট फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनावी मैदान में होंगी। भवानीपुर से वो चुनावी मैदान में नहीं होंगी। जो 2016 में उन्होंने भवानीपुर से ही चुनाव लड़ा था और खुद ममता बनर्जी कहती रही है कि नंदीग्राम उनके लिए बड़ी बहन तो भवानीपुर उनके लिए छोटी बहन जैसी है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी चुनावी मैदान में होंगी नंदीग्राम से, और उन्होंने भवानीपुर को अगर हम देखें तो खास तौर पे भवानीपुर की जो इक्वेशन रही है उसको देखते हुए शोभन देव को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है। बिल्कुल, तो ममता बनर्जी देखिए, टिकट का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। 291 सीटों पर टीएमसी अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर रही है, जबकि 3 सीटों पर सहयोगियों के लिए छोड़ा है। 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है और 42 जो मुसलमान प्रत्याशी हैं, जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, उन पर दाव लगाया है ममता बनर्जी की पार्टी ने। एससी की बात करें तो 79, एसटी को 17 प्रत्याशियों को चयन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, नंदीग्राम से ये चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने अपने नाम का ऐलान तो किया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं कि मैं भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगा। अगर शुभेंदु अधिकारी भी उतरते हैं तो रोचक मुकाबला होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा, देखना होगा। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का पूरा गढ़ माना जाता है। ऐसे में वो चुनाव जो होगा वो बेहद रोचक होगा। तो ममता बनर्जी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई कि अपने दर्शकों को बता दें, सबसे बड़ी खबर इसलिए हो जाती है, देखिए शुरुआत से आपको बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है क्या कुछ ऐलान किया गया। तो देखिए 291 सीटों का ऐलान जो है वो किया गया। सबसे बड़ी बात है 3 सीटें जो है वो छोड़ी गई हैं। महिलाएं 50 महिला कैंडिडेट्स को जो है इस बार टिकट ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया। पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाओं को इस बार हम टिकट देंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स पर भी खास ध्यान दिया गया और इसीलिए 42 मुस्लिम कैंडिडेट्स जो है वो ममता बनर्जी ने ऐलान किए हैं, यानी कि 42 मुस्लिम लोगों को टिकट दिया जाएगा। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर बात करें, एक बड़ा वर्ग मुस्लिम वर्ग है, 30% वोट बैंक जो है मुस्लिम का होता है और इसीलिए जो है ऐलान किया गया है। लेकिन देखिए कोविड की वजह से कुछ लोग ऐसे थे जिनको जो है पहले भी ऐलान किया गया था, 80 साल के ऊपर के जो है या फिर जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, जिनमें नाम है पुरेंदु बोस का, मनीष गुप्ता का, अमित मित्रा का। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और साथ ही अगर भवानीपुर की बात करें, शोभन देव चटर्जी को वहां से जो है टिकट दिया जाएगा। अनंत लगातार हमारे साथ बने हुए, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अनंत, ओवर टू यू। तो ये टीएमसी जी बिल्कुल अनुपमा, ये टीएमसी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। 291 लोगों की ये लिस्ट जारी की गई है और जिसमें कि 3 जो सीटें हैं वो जीजेएम को, यानी कि सहयोगी पार्टी को यहाँ पर की दी गई। देखिए बहुत अहम है क्योंकि ये शुरुआत में कहा गया था कि महिलाओं को इस मामले में काफ़ी तरजीह मिलने जा रही है, महिलाओं को काफ़ी बड़ी संख्या में तरजीह दी जाएगी। वही हुआ भी था कि 50 से ज़्यादा महिलाओं को यहाँ पर सीट दी गई और साथ ही तौर पर देखिए जो धर्मगत समीकरण हैं जो पश्चिम बंगाल के, उसके हिसाब से तकरीबन 42 ऐसे चेहरे हैं जो कि मुस्लिम चेहरे हैं जिनको कि इस पूरी 291 सीटों पर जगह दी गई है। अब सबसे ज़्यादा देखने वाली बात होगी कि जो सीटें थी, जिसमें भवानीपुर और नंदीग्राम की जो सीट थी, उस पर भवानीपुर को अब सीट किसी और उम्मीदवार को सौंप दी गई। नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी ने फैसला किया कि नंदीग्राम से वो खुद चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी के नाम को फाइनल किया जाता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जितनी भी मीटिंग्स अभी तक हुई हैं, हर मीटिंग में, चाहे वो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग रही हो, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग रही हो, चाहे वो कल शाम की मीटिंग रही हो, जो 5.5 घंटे लगभग मैराथन मीटिंग चली है बीजेपी की दिल्ली के अंदर,
उस दौरान ये साफ किया गया था शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी कि वो चाहते हैं कि नंदीग्राम चुनाव लड़े। और शुभेंदु अधिकारी ने बार बार ये भरोसा दिलाया आलाकमान को कि 50,000 से ज्यादा वोटों से शुभेंदु अधिकारी जीत दर्ज करना चाहते हैं। मेरी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ लगातार इस वक्त बनी हुई है। सृष्टि, देखिए 291 सीटों पर टीएमसी ने ये दावा कर दिया कि 291 सीटों पर नाम फाइनल कर दी गई, मनोज तिवारी का नाम भी फाइनल किया गया है, लेकिन समीकरणें आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से 42 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, 50 से ज्यादा महिलाओं को भी तरजीह दी गई है। बिल्कुल जाहिर तौर पर आनंद, देखिए ये अग्नि परीक्षा टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए ही है, क्योंकि जंग जो है टीएमसी बीजेपी इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी के पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अब 291 सीटों पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी सूची जारी की है और जैसा समीकरण लगातार आप बता रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि ऐसा समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है, क्योंकि मुस्लिम टीएमसी का पारंपरिक वोट बैंक हमेशा से रहा है और मुस्लिमों के दम पर ही ममता बनर्जी लगातार इस तरीके की बातें हमेशा करती आई हैं। और उन्होंने 42 मुसलमान कैंडिडेट उतारे हैं, 50 महिलाओं को मौका दिया है। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात करती हुई ममता बनर्जी जो लगातार दिखाई देती हैं, जिस पर बीजेपी ने বিনা পয়সায় সাইকেল চলবে, বিনা পয়সায় স্মার্টফোন, এটা 12 ক্লাসের ছেলে মেয়েদের এগুলো চলবে। এই থেকে রূপসী থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে শিক্ষাশ্রী থেকে শুরু করে সবুজশ্রী থেকে শুরু করে সমব্যথী থেকে শুরু করে বৈতরণী থেকে শুরু করে পেনশন, আপনারা জানেন এই কিছুদিনের মধ্যে আমরা প্রায় 20-30 লাখ পেনশন করে দিয়েছি। সুতরাং পেনশন থেকে শুরু করে কৃষক ভাতা থেকে শুরু করে কৃষক বন্ধু থেকে শুরু করে তপশিলি বন্ধু থেকে শুরু করে আদিবাসী থেকে শুরু করে সব সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে, এমনকি ধর্ম তীর্থস্থানগুলো যদি দেখেন, দক্ষিণেশ্বরের স্কাই ওয়াক আমরা তৈরি করেছি, বেলুন মঠ সুন্দর করে আমরা অনেকটাই সাজিয়েছি। আমরা গঙ্গার ঘাটগুলো, কালীঘাট স্কাই ওয়াক হচ্ছে, তারাপীঠ আমরা সুন্দর করে করে দিয়েছি। দেখবেন লক্ষ্য করে কঙ্কালী তারা থেকে শুরু করে বক্রেশ্বর থেকে শুরু করে তারকেশ্বর থেকে শুরু করে পাথর চাপড়ি থেকে শুরু করে গঙ্গাসাগর থেকে শুরু করে ফুরফুরা শরীফ থেকে শুরু করে জলপেশ মন্দির থেকে শুরু করে আমাদের মদনমোহনতলা মন্দির থেকে শুরু করে শিবযজ্ঞ মন্দির থেকে শুরু করে রানী দেবী দুর্গা যে আমার দুর্গেশ্বর মন্দিরে যে সমস্তগুলো আমরা কিন্তু একটার পর একটা করেছি। আমরা প্রচুর বেরিয়ার গ্রাউন্ড, মাঝি থান, জাহের থান থেকে শুরু করে জয় জোয়ার অনেক কাজ করেছি। তাই আমি সকলের কাছে আবেদন করব, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণভাবে কোভিড পরিস্থিতি মেনটেন করেও আপনারা দয়া করে নিজেদের ভোটটা নিজেরা দেবেন। আর কোনো ভুয়ো প্রচারের কাছে কেউ মাথা নত করবেন না, কোন রকম হিংস্র রাজনীতির কাছে কেউ মাথা নত করবেন না। আর আমি এটা চাই সেন্ট্রাল ফোর্স স্টেট ফোর্স ভালোভাবে একসাথে কাজ করুন। এটা যেন না হয় যে দিল্লি থেকে এলো গাই সাথে এলো সিপিআই, যে দিল্লি থেকে একটা ফোর্স এলো সাথে তাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে পাঠিয়ে দিল, এটা যেন না হয়। কারণ কারো কারো ব্যবহারে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে বিজেপি তাদের নাম্বার 1 পার্টি। साफ तौर पर ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, लिस्ट का ऐलान हो चुका है, तमाम बातें ममता बनर्जी लगातार बता रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर निकलकर जो सामने आई कि भवानीपुर से ममता बनर्जी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि जब शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था शुभेंदु ने, तभी उन्होंने ललकारा था कि ममता बनर्जी को मैं यहीं से चुनौती देना चाहूंगा और ये साबित करके रहूंगा कि नंदीग्राम में जो पैठ शुभेंदु अधिकारी की रही है वो प्रबलता के साथ में आगे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी और बीजेपी में शामिल होने के बावजूद भी यहाँ की जनता शुभेंदु अधिकारी को कहीं न कहीं सपोर्ट करेगी, क्योंकि जिस तरीके का विकास कार्य उस एरिया में किया गया और वहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहीं से शुभेंदु अधिकारी सारथी बने थे ममता बनर्जी के और हाथ थामकर आगे बढ़े थे। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर कलह और कलेश देखा गया, शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़कर शामिल हो जाते हैं बीजेपी में, उसके बाद ममता बनर्जी ऐलान अब कर देती है कि वो नंदीग्राम से ही इस बार मैदान में उतरेंगी। ये ललकार थी शुभेंदु अधिकारी के और उसका जवाब ममता बनर्जी ने यहाँ पर दिया कि वो नंदीग्राम से ही मैदान में उतरेंगी और शुभेंदु अधिकारी अगर सामने होते हैं, क्योंकि अभी एक क्लियरिटी नहीं है जब तक बीजेपी की যারা কনস্টিটিউশনাল বডি, কনস্টিটিউশন ধরুন একটা ডেপুটি চিফ মিনিস্টার, সে তো একটা ডেপুটি চিফ মিনিস্টার কনস্টিটিউশনের মানে, তো তার গাড়ি থেকে টাকা কেটে যাবে, সেরকম এসব নানা অপারেট হচ্ছে। আপনারা খোঁজ নিয়ে নিন কত লোক কোথায় বসে আছে। আমি তাদের বলছি তারা নিজেরা গিয়ে নিজেদের রাজ্যটা সামাল দিন। উত্তরপ্রদেশে আপনারা দেখেন কালকে একদিনে 3টে ঘটনা ঘটেছে, মেয়েটি রেপ হয়েছে, তার বাবাকেও খুন করে দেওয়া হচ্ছে, একটার পর একটা ঘটনা, কোনো বিচার নেই। বাংলা নিয়ে কথা বেশি বলতে বারণ করছি আমি বিজেপিকে এই কারণে। আর সিপিএম কংগ্রেস না বলাই ভালো, ওরা বিজেপির সাথে পুরো বন্ধুত্ব করেছে। আমি 100% আমি দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের গ্রুপকে ধন্যবাদ জানাই এবং অতি বামপন্থী হলেও যারা বামপন্থী আদর্শ মানে তাদের
কিন্তু এই সিপিএম কংগ্রেসকে আমি ধন্যবাদ জানাই না, তার কারণ তারা বিজেপির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলে বলছে শোন তোর 4টে সিট তুই আমায় জেতা, আমার 4টে সিট আমি তোমায় জেতাবো, এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আমরা নেই। তাই তৃণমূল কংগ্রেস স্বচ্ছতার সাথে একাই লড়াই করছে, কিন্তু 100 ভাগ মানুষকে নিয়ে। এইটুকু আপনাদের কাছে আমি বললাম। আর আমি নিজে কালকে একটু শিলিগুড়ি যাব, কারণ পরশুদিন আমার একটা সিলিন্ডার র্যালি হবে। গ্যাসের দাম এত বাড়ছে, বিনা পয়সায় চাল, অথচ গ্যাসে ফুটবে, রান্না করবে, তার দাম 900 টাকা। তো মহা মুশকিল। সেই জন্য আমরা সিলিন্ডার র্যালি করবো সকাল থেকে পুরো সন্ধ্যে পর্যন্ত, আর তারপরে ফিরে আসবো। तो देखिए ममता बनर्जी ने 50 महिलाओं और 42 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया है। 3 सीटें सहयोगी के लिए छोड़ी गई हैं। বাকি 13 তারিখ থেকে আমার কন্টিনিউয়াস প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাবে। শুরু তো হয়ে গেল। আচ্ছা, লিস্টটা কারো রিকোয়েস্ট এসেছে বলে আমি একবার পড়ে দিচ্ছি। শুরু করছি কুচবিহার থেকে। মেকলিগঞ্জ एससी सीट फॉरेस्ट चंद्र सुप्रीमो अधिकारी। ममता बनर्जी ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और टीएमसी की लिस्ट में ऐसे 100 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मौका दिया जा रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में टीएमसी पहली पार्टी है जिसने अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। शुरुआत में कहा जा रहा था, लगातार रिपब्लिक आपको बता रहा था कि सभी सीटों पर टीएमसी दावा नहीं करेगी, बल्कि जीजेसी जो है उसके लिए 3 सीटें छोड़ी गई हैं। नॉर्थ बंगाल की 3 सीटें हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने साफ कहा कि इस द्वंद्व में, इस विधानसभा चुनाव में खुद ममता बनर्जी जो पहले शुरुआत में कहा जाता है कि भवानीपुर और नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने फाइनल कर दिया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि कई ऐसे चेहरे थे जो हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए थे, जिसमें क्रिकेटर मनोज तिवारी का नाम भी शामिल था। तो हाल ही में पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी को हावड़ा के शिवपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई कि मनोज तिवारी हावड़ा के शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। भवानीपुर सीट जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण सीट अपने आप में है, जिस सीट के लिए ममता बनर्जी ने कहा भी था कि वो खुद चुनाव लड़ेंगी। भवानीपुर सीट से शोभम देव चट्टोपाध्याय को जिम्मेदारी दी गई है कि भवानीपुर सीट से शोभम देव चट्टोपाध्याय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सबसे जो चौंकाने वाली बात रही वो अमित मित्रा के नाम को भी ली, क्योंकि ममता सरकार में अमित मित्रा वित्त मंत्री रह चुके हैं और अमित मित्रा को इस चुनाव में उनका नाम कंसिडर नहीं किया गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 100 नए चेहरे हैं और नए चेहरे हैं और जो जवान चेहरे हैं जिनकी उम्र कम है, ऐसे कई चेहरों को इसमें मौका दिया है। 291 कुल उम्मीदवार हैं, जिसमें कि 100 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम की है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर पहले तकरीबन 12 नेता थे और सीएम ममता बनर्जी थी, जिन्होंने तृणमूल चुनाव समिति की अंतिम बैठक में इन तमाम चेहरों पर निष्कर्ष निकाला, फैसला लिया और कई चौंकाने वाले नाम इनमें कई नए चेहरे दिए गए हैं, कई सीटों पर फेरबदल किया गया है। क्योंकि एक जो महत्वपूर्ण बात ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है वो ये कही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस किसी के साथ समझौता नहीं करने वाली। और अनुमानतः तकरीबन 27 ऐसे चेहरे भी हैं जो कि मौजूदा विधायक थे, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में यानी कि जो 291 सीटें जो जारी की गई हैं, इनमें उन चेहरों को जगह नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होने वाला। বিপ্লব মিত্র, হাবিবপুর স্বর্ণা মুর্মু, গাজন বসন্তী বর্মন, চাচন নিহার রঞ্জন ঘোষ, হরিশ্চন্দ্রপুর তাজমুল হোসেন, মালতীপুর আব্দুল রহিম বক্সি, রতুয়া সমর মুখার্জি, মানিকচক সাবিত্রী মিত্র, মালদা এসসি উজ্জ্বল চৌধুরী, ইংলিশ বাজার কৃষ্ণেন্দু, মোতাবাড়ি সাবিনা ইয়াসমিন, সুজাপুর মোহাম্মদ আব্দুল গনি, বৈষ্ণবনগর চন্দনা সরকার, ফরাক্কা মনিরুল ইসলাম, শামশেরগঞ্জ আমিরুল ইসলাম, সুতি ইমামি বিশ্বাস, জঙ্গিপুর জাকির হোসেন, রঘুনাথগঞ্জ আকরাত জুমান, সাগরদিঘি সুব্রত সাহা, লালগোলা মোহাম্মদ আলী, ভগবানগোলা ইদ্রিস আলী, রানীনগর সৌমিক হোসেন, মুর্শিদাবাদ শাওনি সিংহ রায়, নবগ্রাম কানাইচন্দ্র মন্ডল, খড়গ্রাম আশিস মার্জিত, বড়ুয়া জীবন কৃষ্ণ সাহা, কান্দি অপূর্ব সরকার ডেভিড, ভারতপুর হুমায়ুন কবির,
এই হুমায়ুন কবির না, ওটা ওই মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন কবির। হ্যাঁ, রেজিনগর রবিউল আলম চৌধুরী। तो देखिए ममता बनर्जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में 291 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही 3 जो सीटें हैं वो अपनी जीजेएम सहयोगी पार्टी जो है उसके लिए रखी गई है। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बातें, बड़ी बातें आपको बताते हैं ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कही है। सबसे पहली बात ये कि महिलाएं 50 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें जो है ममता बनर्जी ने अपनी लिस्ट में जगह दी है। 42 मुस्लिम वर्ग के भी ऐसे उम्मीदवार उतारे जाएंगे ममता बनर्जी की तरफ से जो इस लिस्ट में शामिल होंगे, क्योंकि बंगाल के अंदर अगर बात करें 30% मुस्लिम वर्ग है जो एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया। हैरानी सबसे ज्यादा अमित मित्रा के नाम पर हो रही है क्योंकि वो मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। दूसरी बड़ी बात करें तो पूर्णेंदु बोस, मनीष गुप्ता, अमित मित्रा जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने पहले इस बात का ऐलान किया था कि वो नंदीग्राम सीट से जो है चुनाव लड़ेंगी। और देखिए 10 या फिर 11 दो ऐसी सीट दिन बताए जा रहे, टेंटेटिव है हालांकि अभी, कि आखिर किस दिन जो है वो वहां से अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाए। लेकिन देखिए निगाहें जो है सबकी टिकी हुई थी भवानीपुर सीट पर, क्योंकि भवानीपुर सीट से बाबुल सुप्रियो ने जो है ये कहा था कि अगर ममता बनर्जी वहां से उतरती हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं उस सीट पर चुनाव लड़ूं। लेकिन वहां पर शोभनदेव चटर्जी को ममता बनर्जी ने जगह दी है। क्या सोच के जगह दी गई है? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा, ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि मैं 2 सीटों से चुनाव लड़ सकती हूँ, नंदीग्राम और साथ ही भवानीपुर, क्योंकि भवानीपुर गृह क्षेत्र है ममता बनर्जी का। लेकिन वहां से शोभनदेव चटर्जी जो है उन्हें उतारा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए एक और खास बात यह कि अदिति मुंशी जिन्होंने कल ही टीएमसी का दामन थामा है, उनको भी जो है टिकट दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। रतन चटर्जी जो है वो इस बार जो है बेहला पूर्वो से जो है वो अपना टिकट जो है उनको मिला है, जो सोवन चटर्जी কাটতে হয়েছে। বীজপুর সুবোধ অধিকারী, নৈহাটি পার্থভৌমিক, ভাটপাড়া জিতেন্দ্র সাউ, জগদ্দল সোমনাথ শ্যাম, নোয়াপাড়া মঞ্জু বসু, ব্যারাকপুর রাজ চক্রবর্তী, খর্দা কাজল সিনহা, দমদম উত্তর চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পানিঘাটি নির্মল ঘোষ, কামারঘাটি মদন মিত্র, বরানগর তাপস রায়, দমদম বাক্য বোস, রাজারহাট নিউ টাউন তাপস চ্যাটার্জি, বিধাননগর সজিত বোস, রাজারহাট গোপালপুর অদিতি মুন্সি, মধ্যমগ্রাম রতিন ঘোষ, বারাসাত চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, দেগঙ্গা রহিমা মন্ডল, হাওড়া নুরুল ইসলাম, মিনাখা উষারানী মন্ডল, সন্দেশখালী সুকুমার মাহাতো, বসিরহাট দক্ষিণ ডক্টর সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, খুব পপুলার ম্যান, বসিরহাট উত্তর রফিকুল ইসলাম মন্ডল, ইন্দরগঞ্জ দেবেশ মন্ডল, গোসাবা সাউথ জয়ন্ত নস্কর, বাসন্তী শ্যামল মন্ডল, এখানে শ্যামলকে ক্যানিং ওয়েস্ট থেকে ওখানে রিঅ্যাডজাস্ট করা হয়েছে, কুলতলি গণেশচন্দ্র মন্ডল, পাথর প্রতিমা সমীর জানা, কাকদ্বীপ মন্টু, সাগর বংশীচন্দ্র হাজরা, কুলপি যোগরাজন হালদার, রায়দিঘি অলোক জালদাটা, মন্দির বাজার জয়দেব হালদার, জয়নগর বিশ্বনাথ দাস, বারুইপুর পূর্ব দিবাস সর্দার, ক্যানিং পশ্চিম গণেশরাম দাস, ক্যানিং পূর্ব শওকত মোল্লা, বারুইপুর পশ্চিম বিমান ব্যানার্জি, মথুরাপুর পূর্ব মগরাও পূর্ব নমিতা সাহা, মগরাও পশ্চিম গিয়াসুদ্দিন, ডায়মন্ড হারবার পান্নালাল হালদার, ফলতা শঙ্কর কুমার নস্কর, চাঁদগাছিয়া মোহন চন্দ্র নস্কর, तो आप लगातार ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, जिस तरीके से वो सभी नामों का ऐलान लगातार कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये 291 सीटों की जो लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है उसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो नए चेहरे हैं, जो स्टार्स हैं, जो इंडस्ट्री के लोग शामिल हुए हैं, उन लमसम सभी को मौका यहाँ से दिया गया है। जो नाम निकलकर सामने आए हैं, एक्टर हैं शोहम, उनको चांदीपुर से मौका दिया गया है, शयनी को आसनसोल साउथ से मौका दिया गया है, अदिति मुंशी जो अभी हाल ही में शामिल हुई हैं उनको मौका दिया गया है। इसके साथ ही मनोज तिवारी को भी मौका दे दिया गया है शिवपुर से। तो ये वो नाम है जो नए हैं, एकदम जो पॉलिटिक्स में एकदम नए हैं और इंडस्ट्री से शामिल हुए हैं। लेकिन इन सभी को मौका ममता बनर्जी की तरफ से यहाँ लगातार दिया गया है। तो ये तमाम लिस्ट है जिसका ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं, आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि 50 महिलाएं हैं जिनका नाम इसमें शामिल किया गया है। महिला सशक्तिकरण यहाँ पर दिखाने की कोशिश ममता की तरफ से की गई है। কাশীপুর বেলগাছিয়া অতীন ঘোষ, বালি ডক্টর রত্না চ্যাটার্জি, ডক্টর রানা চ্যাটার্জি, হাওড়া উত্তর গৌতম চৌধুরী, হাওড়া মধ্য অরূপ রায়,
শিবপুর মনোজ তিওয়ারি, হাওড়া দক্ষিণ নন্দিতা চৌধুরী, এ হচ্ছে অম্বিকা ব্যানার্জির মেয়ে, বড় মেয়ে। হ্যাঁ, সাকরাই প্রিয়া পাল, পাঁচলা গুলশান মল্লিক, উলুবেড়িয়া পূর্ব বিদেশ বোস ফুটবলার, উলুবেড়িয়া উত্তর ডক্টর নির্মল মাঝি, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ পুলক রায়, শ্যামপুর কালীপদ মন্ডল, বাগম্যান রাজা অর্ণব হোসেন, আমতা সুকান্ত পাল, উদয়নারায়ণপুর সমীর কুমার পাঞ্জা, জগৎবল্লভপুর সীতানাথ ঘোষ। ডঞ্জু কল্যাণেন্দু ঘোষ, উত্তরপাড়া কাঞ্চন মল্লিক অ্যাক্টর, শ্রীরামপুর ডক্টর সুদীপ্ত রায়, চাপদানি অরিন্দম গুই, সিঙ্গুর বেচারাম মান্না, চন্দননগর ইন্দ্রনীল সেন, চুচুড়া অসিত মজুমদার, বলাগড় হচ্ছে মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ইনি হচ্ছেন দলিত সাহিত্য একাডেমির প্রেসিডেন্ট, যিনি জীবনে অনেকদিন রিক্সা চালিয়েছেন, রান্নার কাজ করেছেন। আমি তাকে নিয়ে এসেছি এখানে, মানে অনেক বই লিখেছেন, খুব ইম্পর্টেন্ট মানুষ। আমি অসিতকে বুঝিয়ে এটা করছি এবং ওরা খুশি সেটাতে। আচ্ছা, পান্ডুয়া ডক্টর রত্না দেনা, সপ্তগ্রাম তপন দাশগুপ্ত, চণ্ডীতলা সাথী, জঙ্গিপাড়া স্নেহাশিস চক্রবর্তী, হরিপাল, করবী মান্না, এটা বেচার বউ আছে, ধনেখালি অসীমা পাত্র, তারকেশ্বর রমেন্দ্র সিংহ রায়, পরশুরা দিলীপ যাদব, আরামবাগ হুগলি সুজাতা মন্ডল খান, সৌমিত্র বউ, বগত মানস মজুমদার, খানাকুল মুন্সি নাজবুল করিম, তমলুক ডক্টর সোমেন মহাপাত্র, পাঁচকুড়া পূর্ব বিপ্লব রায়চৌধুরী, পাঁচকুড়া পশ্চিম ফিরোজা বিবি, ময়না সংগ্রাম কুমার দলই, নন্দকুমার সুকুমার দে, মহিষাদল তিলক চক্রবর্তী, হলদিয়া স্বপন নস্কর, নন্দীগ্রাম মমতা ব্যানার্জি, চণ্ডীপুর সোহন চক্রবর্তী, পটাশপুর পীযুষকান্তি পান্ডা, কাথি উত্তর তরুণ কুমার জানা, ভগবানপুর অর্জেন্দু মাইতি, খেজুরি ডক্টর পার্থপ্রতিম দাস, কাঁথি দক্ষিণ জ্যোতির্ময় কর, রামনগর অখিল গিরি, এগরা তরুণ মাইতি, দাতন বিক্রমচন্দ্র প্রধান, কেশিয়ারি পরেশ মুর্মু, খড়গপুর সদর প্রদীপ সরকার, নারায়ণগড় সূর্যকুমার অট্ট, সবং মানস রঞ্জন ভূঁইয়া, পিংলা অজিত মাইতি, খড়গপুর দীনেন রায় রুরাল, দেবরা হুমায়ুন কবির এক্স আইপিএস, দাসপুর মমতা ভূঁইয়া, শঙ্কর দলিল হচ্ছে ঘাটাল, চন্দ্রকোনা অরূপ ধারা, গড়বেতা উত্তরা সিং হাজরা, শালবনী শ্রীকান্ত মাহাতো, কেশপুর শিউলি সাহা, মিদনাপুর টাউন, মিদনাপুর পশ্চিম মিদনাপুর জুন মালিয়া অ্যাক্ট্রেস, নয়াগ্রাম ঝাড়গ্রাম দুলাল মুর্মু, গোপীবল্লভপুর ডক্টর খগেন্দ্র মাহাতো, ঝাড়গ্রাম বীরবাহা হাসদা, চুনি হাসদার মেয়ে, নরেন হাসদার মেয়ে, বড় আর্টিস্ট, বিনপুর এসটি দেবনাথ হাসদা, বারোয়ান রাজীব লোচন সোরেন পুরুলিয়া, বলরামপুর পুরুলিয়া শান্তিরাম মাহাতো, বাগমুন্ডি সুশান্ত মাহাতো, জয়পুর উজ্জ্বল কুমার, পুরুলিয়া সুজয় ব্যানার্জি, মানবাজার সৌম্যরানী টুডু, কাশীপুর স্বপন কুমার বেলতরিয়া, পাড়া উমাপদ বাউরি, রঘুনাথপুর হাজারি বাউরি, সাউতরা সন্তোষ মন্ডল, ছাতনা সুভাষিস ভট্টাচার্য, রানীবাদ জজতা মান্ডি, রায়পুর মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু, তালডাংরা অরূপ চক্রবর্তী, বাঁকুড়া সায়ন্তিকা ব্যানার্জি, বর্জরা অলোক মুখার্জি, এ খুব মাটির ছেলে, ওন্দা অরূপ কুমার খান, বিষ্ণুপুর অর্চিতা বিদ, কতলপুর সঙ্গীতা মালিক, ইন্দাস রুন বেটে, ওই গুরুদাস বেটে মারা গেল না ওনার স্ত্রী, সোনামুখী শ্যামল সাতরা, খণ্ডঘোষ নবীন চন্দ্র বাগ, বর্ধমান দক্ষিণ খোকন দাস,
দাস, রায়না সম্পাধারা, জামালপুর অলোক কুমার মাঝি, মন্তেশ্বর সিদ্দিকুল্লাহ, কালনা দেবপ্রসাদ বাগ, মেমারি মধুসূদন ভট্টাচার্য, বর্ধমান উত্তর নিশীথ কুমার মালিক, ভাতার मनोगोविंद अधिकारी। ममता ने 291 कैंडिडेट के नाम जारी कर दिए हैं, जिसमें 50 महिलाओं को और 42 मुस्लिम चेहरों को मौका दिया गया है। और ये भी साफ कर दिया ममता बनर्जी ने कि वो खुद नंदीग्राम से लड़ने जा रही हैं। हालांकि दो बातें बहुत दिलचस्प हैं कि कल वो सिलीगुड़ी में एक सिलेंडर रैली करने जा रही हैं, जिसमें कि वो उनका विरोध यही रहेगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से लगातार सिलेंडर के प्राइस हाइक हुए हैं, प्राइस बढ़ाए गए हैं, कीमत बढ़ी है, उसको विरोध दर्ज कराया जाए। और 7 तारीख को जब कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली कर रहे होंगे और उसी वक्त उसी दिन ममता बनर्जी भी पद यात्रा निकालेंगी, यानी सीधी टक्कर चुनाव से पहले जमीन पर देखने के लिए मिलेगी आपको। 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। 100 ऐसे चेहरे टीएमसी में जिसमें जिनको पहली बार मौका दिया जा रहा है। 50 महिलाओं को मौका दिया गया है, 42 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल किए गए हैं। और दार्जिलिंग की जो 3 सीटें हैं, उन सीटों पर टीएमसी चुनाव नहीं लड़ेगी, वो अपनी सहयोगी पार्टी को टीएमसी ने दी है। हालांकि देखिए, शुरुआत में कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर की जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक महिलाओं को मौका मिलना चाहिए और युवा चेहरों को मौका मिलना चाहिए। इसलिए कहा गया कि जो सफाई दी गई, ये दी गई कि कोविड गाइडलाइन के चलते जो उम्रदराज जो नेता हैं, जो चेहरे हैं टीएमसी के, उनको मौका नहीं मिलेगा। कई ऐसे चेहरे जो कि हाल ही में राजनीति में घुसे और हाल ही में टीएमसी ज्वाइन की, जिसमें कि मनोज तिवारी का नाम शामिल है, जिनको कि हावड़ा के शिवपुर से चुनाव लड़ने का फैसला टीएमसी की तरफ से किया गया है। भवानीपुर सीट जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सीट थी और ये कहा गया था कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से और नंदीग्राम सीट से दोनों जगह से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन आज ये साफ कर दिया गया कि भवानीपुर सीट की जो जिम्मेदारी है वो शोभन देव चट्टोपाध्याय को दी गई है। अमित मित्रा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो कि वित्त मंत्री रहे हैं ममता सरकार में। और 28 जो मौजूदा विधायक हैं, उन तमाम विधायकों के लिस्ट काटे गए हैं। और खास तौर पर जिन बाहरी जो राज्यों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने टीएमसी को समर्थन दिया था, जिसमें तेजस्वी यादव शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल शामिल हैं, हेमंत सोरेन शामिल हैं, शिवसेना शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, उन तमाम दलों को भी ममता बनर्जी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धन्यवाद दिया। अब आपको बताते हैं कि उम्र का समीकरण क्या है। 100 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं टीएमसी में इस बार जो 50 साल से कम की उम्र के हैं। लेकिन फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको लगातार डिटेल दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि पश्चिम बंगाल